দিনের আলোয় গ্রামের মানুষের চোখের সামনে নিজের ন্যায়ের দাবিতে ধর্নায় বসা এক গর্ভবতী মহিলাকে কুপিয়ে জানে শেষ করা হলো। ঘটনাটি শুধু একটি খুন নয়, সমাজের বিবেককে নাড়িয়ে দেওয়া এক নির্মম বাস্তবের প্রতিচ্ছবি। মৃতার নাম পূজা সাইন, বয়স আনুমানিক 24। নিজের মেয়েকে পাশে নিয়ে স্বামীর বাড়ির সামনে বসে প্রতিবাদ করছিলেন তিনি। আর সেই প্রতিবাদের মাঝেই ঘটে গেল রক্তাক্ত পরিণতি। দাদার স্ত্রীকে কুপিয়ে জানে শেষ করে দেয় ভাই। ঘটনাটি খিরিদা গ্রামের, যা গঞ্জাম জেলার হিঞ্জিলি থানা এলাকার অন্তর্গত। ঘটনার পর থেকেই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এবং গ্রামবাসীর মধ্যে আতঙ্ক। প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে 3 বছর আগে একই গ্রামের বাসিন্দা চিন্টু গৌড়ার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে পূজার, এবং সেই সম্পর্ক বিয়েতে পরিণত হয়। পরিবার বা সামাজিক বাধা উপেক্ষা করেই তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। কিছুদিন সংসারও করেন এবং তাদের একটি 3 বছরের কন্যা সন্তান রয়েছে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই পূজাকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছিল। প্রতিবেশীদের মতে প্রায়ই তাদের মধ্যে অশান্তি লেগে থাকতো এবং পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে ওঠে। শেষমেশ পূজাকে ছেড়ে আলাদা থাকতে শুরু করেন চিন্টু এবং পরে গ্রাম ছেড়ে চলে যান বলেও অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার সময় পূজা 4 মাসের গর্ভবতী ছিলেন। সেই অবস্থাতেও তিনি হাল ছাড়েননি। নিজের অধিকার এবং ন্যায় বিচারের দাবিতে স্বামীর বাড়ির সামনে ধর্নায় বসেন। তার পাশে ছিল ছোট্ট কন্যা সন্তান, যে হয়তো পুরো পরিস্থিতি বোঝার মতো বয়সে পৌঁছয়নি, কিন্তু মায়ের সংগ্রামের সাক্ষী হয়েছিল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েকদিন ধরেই তিনি ওই বাড়ির সামনে অবস্থান করছিলেন। প্রতিবেশীরা তাকে সরে যেতে বললেও তিনি অটল ছিলেন। তার দাবি ছিল স্বামীকে ফিরিয়ে এনে সংসার পুনর্গঠন করতে চান, মানে তিনি আবার সংসারটা করতে চান, অথবা তার উপর হওয়া নির্যাতনের বিচার করতে হবে। এক প্রতিবেশী জানিয়েছেন, পূজা অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় এই পদক্ষেপ করেছিলেন, কারণ অন্য কোনো পথ তার সামনে খোলা ছিল না। মঙ্গলবার দুপুরে আচমকাই পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নেয়। অভিযোগ, পূজার দেওর হঠাৎই উত্তেজিত হয়ে একটি ধারালো অস্ত্র নিয়ে তার উপর হামলা চালায়। সেই সময় রাস্তায় বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন এবং ঘটনাটি ঘটে সম্পূর্ণ প্রকাশ্যে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই অভিযুক্ত একের পর এক আঘাত করতে থাকে। গুরুতর জখম হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন পূজা এবং ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয় বলে অনুমান করা হচ্ছে। এই নৃশংস ঘটনার সবচেয়ে হৃদয় বিদারক দিক ছিল তার কন্যা সন্তানের উপস্থিতি, যে মায়ের রক্তাক্ত দেহের পাশে কান্নায় ভেঙে পড়ে মেয়েটি। এই দৃশ্য উপস্থিত সকলকে স্তম্ভিত করে দেয় এবং আতঙ্কে জমে যায় গোটা এলাকার মানুষ। ওই এলাকায় কৌতূহলী মানুষ জমে যান এবং তারা বিক্ষোভও দেখাতে থাকেন। ওড়িশা থেকে আমার সহকর্মী অজয় কুমার নাথ তার প্রতিবেদনে কি বলছেন শুনুন। उड़ीसा गंजाम जिला से एक ऐसे खबर सामने आया है जिसको देख करके हर कोई चौंक जाता है। दरअसल बात यह है कि गंजाम जिले का हिंजली एरिया में रहने वाला दो शख्स, एक पूजा स्वाई और उनका बॉयफ्रेंड जो है चिंटू गोड़ा और पूजा स्वाई का बीच में इंस्टाग्राम में पहले मुलाकात होता है और उसके बाद दोनों के बीच में प्यार होता है। और ये प्यार को अंजाम देने के लिए दोनों 3 साल पहले घर से भाग जाते हैं और भाग जाने के बाद दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं और दोनों भाग करके पूरी में रह रहे थे, उड़ीसा का पूरी जिले में रह रहे थे। और 3 साल रहने के बाद चिंटू गौड़ा ने पूजा स्वाई को घर जाने के लिए बोला और चिंटू का बात मान करके पूजा स्वाई ने घर आया था और रास्ते में ही बरमपुर रेलवे स्टेशन में पूजा स्वाई को छोड़ करके चिंटू गौड़ा ने कहीं और भाग गया। और चिंटू को खोजते खोजते पूजा स्वाई ने जाके हिंजली और पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेन दर्ज करवाया और ये कंप्लेन दर्ज करने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू किया और स्वाई ने चिंटू का परिवार का 3 लोगों के खिलाफ पूजा का जो ये है चिंटू गौड़ा का माँ, बहन और चिंटू गौड़ा के नाम पे भी कंप्लेन हुआ था। और ये कंप्लेन होने के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था और इन्वेस्टिगेशन चलते पुलिस ने पूजा को एक वन स्टॉप सेंटर में रहने के लिए सुझाव दिया और पूजा स्वाई को लेकर के एक वन स्टॉप सेंटर में छोड़ दिया गया था। लेकिन पूजा ने उस वन स्टॉप सेंटर छोड़ करके अपने चिंटू गौड़ा के घर को आ गया था। और 3 दिन पहले यानी 4 तारीख को चिंटू गौड़ा के घर के सामने आके
पूजा स्वाइन जो है वो अपने पति को खोज कर लाने के लिए वो मांग कर रही थी। अपने छोटे साल की लड़की को साथ में लेकर के, अपने बच्ची को साथ में लेकर के आके चिंटू गौड़ा के द्वार में खड़े होके अपने पति को लौटाने के लिए, चिंटू गौड़ा को लौटाने के लिए वो मांग कर रही थी, जस्टिस मांग रही थी और बोल रही थी कि मुझे मेरा चिंटू गौड़ा चाहिए, मेरा पति चाहिए और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर मुझे चिंटू गौड़ा नहीं मिलेगा तो मैं लूंगी। ये धमकी भी बार बार दे रही थी और इस बीच चिंटू गौड़ा के परिवार लोग थोड़ा छिड़क गए थे। चिंटू गौड़ा के परिवार का, जो चिंटू गौड़ा का जो भाई है लीटू गौड़ा, वो इस बात को लेकर के थोड़ा उत्थित हो गया था और थोड़ा गुस्सा हो गया था और गुस्सा होने के बाद दोनों के बीच में थोड़ा झड़प भी हुआ था और इसके बाद ये बात को लेकर के जो पूजा स्वाइन जो है चिंटू गौड़ा के घर के सामने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया और 4 तारीख से ये प्रोटेस्ट शुरू किया। जब मीडिया के सामने ये बात आकर पूजा स्वाइन ने पूरा चीज बोला कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, 3 साल से लगातार मैं जब से चिंटू गौड़ा के साथ गया हूँ, क्या क्या हुआ है, पूरा चीज जब मीडिया के सामने बोल दिया, ये बात को लेकर के ये झगड़ा और बढ़ गया और चिंटू स्वाइन का जो भाई है, चिंटू स्वाइन तो एब्सकॉन्ड है। चिंटू स्वाइन अब कहाँ है किसी को पता नहीं है। हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में चिंटू गौड़ा कहाँ है पुलिस ढूंढ नहीं पा रहा है और बार बार चिंटू गौड़ा के बात बोल करके जब अपने चिंटू गौड़ा के घर के सामने जब ये चीख रहा था, जब अपना प्यार के लिए, अपना पति के लिए पूजा स्वाइन ने जब द्वार में बैठ करके न्याय मांग रही थी, उस समय ये चिंटू गौड़ा का जो भाई है लीटू गौड़ा, वो थोड़ा गुस्सा हो गया था और पूजा के ऊपर अटैक कर दिया था और इस अटैक के बाद पूजा स्वाइन जो है, जो न्याय मांग रही थी, वह इतना जोर से अटैक हुआ। एक कुल्हाड़ी में चिंटू स्वाइन का भाई, छोटा भाई जो है लीटू गौड़ा, चिंटू गौड़ा का भाई लीटू गौड़ा ने एक कुल्हाड़ी में गुस्सा होकर के क्यों हमारे द्वार पर बैठा है ये बोल करके अटैक किए थे और अटैक के बाद वही स्पॉट पर ही पूजा स्वाइन का मौत हो गई थी और ये बात देखते देखते चारों तरफ फैल गया था और ये बात खबर पा करके हिंजिली पुलिस ने जाकर के वो गांव में पहुंचा था, को रिसीव किया था और इस मामले को लेकर के छानबीन शुरू किया था। दरअसल बात अंदर में क्या है, क्यों पूजा स्वाइन को छोड़ करके चिंटू गौड़ा उस दिन पुलिस ये रेलवे स्टेशन से छोड़ करके क्यों चल गया था, इस मामले को लेकर के पुलिस स्टेशन क्यों पहुंचा था, पूजा स्वाइन के साथ चिंटू गौड़ा का क्या झगड़ा हुआ था, दोनों के बीच क्या ऐसे हुआ था मामला, ये बात अब ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पूरा चीज पता चलेगा। लेकिन पूजा स्वाइन ने उस दिन, जिस दिन चिंटू गौड़ा ने रेलवे स्टेशन में छोड़कर गई थी, उस दिन चिंटू गौड़ा के खिलाफ और उनके परिवार के खिलाफ डाउरी का एक केस दर्ज किया था और इसको बाद ही सारा प्रोटेस्ट शुरू हुआ था और प्रोटेस्ट के बीच ही पूजा स्वाइन का हो जाता है और इसको लेकर के अब पूरा छानबीन हो रहा है। पुलिस आगे ही इन्वेस्टिगेशन में पूरा चीज का खुलासा करेगा कि क्यों हुआ था ऐसा, ये मामला क्यों, ये वारदात क्यों हुआ और ये मामले में और क्या क्या एंगल है, क्यों अगर पूजा स्वाइन को घर में ऐसे कुछ डाउरी को लेकर के ऐसे कुछ टर्चर हो रहा था तो इसको पूरा खुलासा होना चाहिए। अब इसको लेकर के हर कोई सवाल कर रहा है कि पूजा स्वाइन के साथ अक्सर उस दिन क्या हुआ था, क्यों लगातार पूजा स्वाइन ने न्याय मांग रही थी, ये मामले को लेकर के अब पूरा चर्चा हो रही है। আপনাদের মতামত জানাতে থাকুন, দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি।